شبی حسن۔ میں ہوں فروت مبین۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اہم خبر دیں آپ کو۔ پیرس سے لاہور آنے والی PIA کی پرواز 734 کی سیالکوٹ ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ۔ طیارے سے پرندہ ٹکرا جانے کے بعد اسے سیالکوٹ ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ 2 گھنٹے سے طیارے میں موجود مسافر شدید مشکلات سے دوچار ہو گئے ہیں۔ PIA ذرائع کے مطابق پرواز کو آدھے گھنٹے بعد روانہ کیا جائے گا۔ طیارے میں 15 بچوں سمیت 342 مسافر سوار ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، ایک دفعہ پھر آپ کو یہاں سے بتاتے چلیں کہ پیرس سے لاہور آنے والی PIA کی پرواز 734 کی سیالکوٹ ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ۔ اس ہنگامی لینڈنگ کے حوالے سے ہمیں مزید بتا رہے ہیں نمائندہ نیوز عثمان اقبال۔ جی عثمان اقبال، مزید بتائیے۔ جی بالکل، یہ میلان پیرس سے لاہور آنے والی PIA کی پرواز 700 لینڈنگ جو ہے وہ کروا دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق طیارے سے جو ہے وہ پرندہ جس کے پیش نظر جو ہے وہ اس کو ری روٹ کرنا پڑا ہے، اور ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق مسافر جو ہیں اس میں 342 مسافر موجود ہیں، جس میں 15 جو ہے وہ بچے بھی ہیں۔ مشکلات جو ہے وہ طیارے میں جو موجود مسافر ہیں وہ شدید مشکلات سے دوچار ہیں، اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس کو آدھے گھنٹے میں دوبارہ جو ہے وہ اس کو روانہ کر دیا جائے گا۔ تاہم جو ہے وہ پرواز جو ہے لاہور آنے والی پرواز ہے، اس وقت سیالکوٹ ایئرپورٹ کی ہنگامی لینڈنگ کروائی گئی ہے، اور اس کی وجوہات جو ہے وہ جہاز سے پرندہ ٹکرانے کی بتائی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا عثمان اقبال۔ بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کریں، آپ کو بتائیں کہ شیخوپورہ میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی اور ملبے تلے دب کر ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ المناک واقعہ تحصیل فیروز والا کے علاقے کوٹ عبد المالک میں پیش آیا۔ مکین رات کو سوئے ہوئے تھے کہ موسلادھار بارش نے بوسیدہ چھت کو موت بنا کر ان کے اوپر گرا دیا اور 7 افراد کو ابدی نیند سلا دیا، جبکہ شیخوپورہ کی تحصیل مرید میں بھی ایک مکان کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں تحصیل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید جانیں گے نمائندہ نیوز علی عمران سے۔ جی آپ اپڈیٹ کیجیے گا ان حادثات کی، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو حالیہ جاری بارشوں کے سلسلے میں جو نقصانات کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ شیخوپورہ کے علاقے کوٹ عبد المالک میں جو ہے وہ مکان کی چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد جو ہے وہ تلے دب کر جاں بحق ہو گئے ہیں، جن میں میاں بیوی اور 5 بچے شامل ہیں۔ ریسکیو 112 کو اطلاع ملتے ہی جو ہے وہ موقع پر پہنچ کر ملبے سے بچوں اور دونوں میاں بیوی کی لاشیں جو ہے وہ نکال لی ہیں، جبکہ شیخوپورہ کے علاقے مریدکے میں بھی جو ہے وہ بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے جو ہے وہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں تشویشناک حالت میں جو ہے وہ تحصیل مرید میں جو ہے وہ ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کیا آپ نے۔ شامل کریں گے مزید کچھ خبریں۔ فیصلے کی گھڑی آ گئی، عالمی عدالت انصاف میں بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ پاکستانی وفد اٹارنی جنرل انور منصور کے ساتھ دی ہیگ پہنچ گیا۔ عالمی عدالت انصاف کے صدر اور جج عبدالقوی احمد یوسف بھارتی اپیل کا فیصلہ سنائیں گے۔ سماعت کے دوران بھارت کی جانب سے ہریش سالوے نے دلائل پیش کیے، جبکہ پاکستان کی جانب سے خاور قریشی نے بھرپور کیس لڑا۔ 22 فروری 2019 کو محفوظ کیا گیا فیصلہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے سنایا جائے گا۔ I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. عالمی عدالت انصاف بھارتی جاسوس کلبھوشن کیس کا فیصلہ آج سنائے گی۔ بھارتی نیوی کے حاضر سروس کمانڈر کو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران گرفتار کیا گیا۔ عالمی عدالت انصاف کے صدر اور جج عبدالقوی احمد یوسف بھارتی اپیل کا فیصلہ سنائیں گے۔ آخری سماعت میں پاک بھارت دونوں کے وکلاء نے شرکت کی۔ پاکستانی وفد اٹارنی جنرل انور منصور کے ہمراہ ہیگ پہنچ گیا۔ سماعت کے دوران بھارت کی طرف سے ہریش سانولے نے دلائل پیش کیے، جبکہ پاکستان کی طرف سے خاور قریشی نے بھرپور کیس لڑا۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ عالمی عدالت انصاف نے کیس کا فیصلہ 22 فروری کو سماعت مکمل ہونے پر محفوظ کیا تھا۔ پاکستانی وفد اٹارنی جنرل کی قیادت میں فیصلہ سننے کے لیے ہیگ میں موجود۔ عالمی عدالت انصاف کے اعلامیے کے مطابق کلبھوشن جادھو کیس کا فیصلہ ICJ کے جج عبدالقوی احمد پڑھ کر سنائیں گے۔ نمائندہ نیوز سردار شیراز ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی آپ بتائیے گا کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟
جی بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کے کیس کا فیصلہ آج سنایا جا رہا ہے. اس حوالے سے پاکستان کا جو وفد ہے وہ گزشتہ روز پہنچ گیا تھا، جبکہ بھارتی وفد بھی وہاں پہنچا ہوا ہے. کلبھوشن یادو کو پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد اس سے مقدمہ چلایا گیا اور اس نے اعتراف کیا تھا کہ وہ پاکستان میں مختلف طرح کی جو سبوتاجی کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ملوث ہے، جس پر اسے سزائے موت سنائی گئی تھی، جس کے خلاف بھارت جو ہے وہ عالمی عدالت میں گیا تھا. عالمی عدالت نے اس کیس کا فیصلہ 22 فروری کو محفوظ کیا تھا، جو آج پاکستانی وقت کے مطابق 7 بجے جبکہ مقامی وقت کے مطابق 3 بجے سنایا جائے گا. جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کیا آپ نے. فوجی عدالت سے سزائے موت پانے والے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی قسمت کا فیصلہ آج ہو جائے گا. کلبھوشن یادو کو کب اور کہاں سے گرفتار کیا گیا، تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. Aim was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi and Baluchistan. بھارتی شہری کلبھوشن یادو کو 3 مارچ 2016 کو پاک ایران سرحدی علاقے سے گرفتار کیا گیا. Doing some intelligence. 24 مارچ 2016 The Shia Muslims who move around on pilgrimage between Iran, Afghanistan and Pakistan. پاک فوج نے انکشاف کیا کلبھوشن بھارتی بحریہ کا افسر اور را کا ایجنٹ ہے. So I joined the National Defense Academy in 1987. 29 مارچ 2016 Aim was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi. کلبھوشن یادو کے اعترافی بیان کی ویڈیو جاری کی گئی. And I had visited Karachi on 2 occasions in 2005 and 2006. اپریل 2016 بھارتی جاسوس کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. 1 سال تک مقدمے کی سماعت چلی. 10 اپریل 2017 کلبھوشن یادو کو فوجی عدالت نے مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنا دی. 10 مئی 2017 بھارت نے اپنے جاسوس کو بچانے کے لیے عالمی عدالت انصاف میں درخواست دائر کر دی. 15 مئی 2017 عالمی عدالت میں بھارتی درخواست کی پہلی سماعت ہوئی. 18 مئی 2017 عالمی عدالت نے مقدمے کا حتمی فیصلہ آنے تک پھانسی پر عمل درآمد رکوا دیا. عالمی عدالت انصاف میں 8 ماہ تک مختلف سماعتوں کے دوران پاکستان اور بھارت کی جانب سے دلائل اور ثبوت دیے گئے. فروری 2019 کو فیصلہ محفوظ کیا گیا. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری. قابض بھارتی فوج نے ضلع بارہمولہ کے متعدد علاقوں کا محاصرہ کر لیا. محاصرے کے دوران 2 کشمیری نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. بھارتی فوج کی تلاشی کے نام پر چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی افواج کی ریاستی دہشت گردی جاری. کٹپوتی انتظامیہ نے ضلع میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی. افغان صحافی کے امریکی ترجمان سے پاکستان مخالف زہر اگلوانے کی کوشش ناکام ہو گئی. ترجمان مارگن اورٹیگس نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خصوصی سفیر بات کر چکے ہیں. عمران خان کے دورہ امریکہ پر وائٹ ہاؤس تفصیلی بات کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاک بھارت عوامی رابطے بڑھانے کے اقدامات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ مارگن اورٹیگس سے افغان صحافی کی پاکستان مخالف زہر اگلوانے کی کوشش ناکام ہو گئی. ترجمان مارگن اورٹیگس نے کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خصوصی سفیر بات کر چکے. عمران خان کے دورہ امریکہ پر وائٹ ہاؤس تفصیلی بات کر سکتا ہے. Imran Khan's visit, will he be visiting and have meetings in this building also? So this is an official White House visit, so at the moment we're going to let them speak to the details of the visit. ترجمان نے کرتارپور اداری پر پاک بھارت مذاکرات اچھی خبر قرار دیا. پاک بھارت عوامی رابطے بڑھانے کے اقدامات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں.
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसाफ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका हकीकी मकसद तभी पूरा होगा जब आलमी अदालत इंसाफ जैसे इदारे मखसूस लॉबी के कंट्रोल से निकलकर आज़ादाना फैसले सादर करेंगे और पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण जाधव की दहशतगर्दी की भेंट चढ़ने वाले खानदानों को इंसाफ देंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम इंसाफ मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद 20वीं सदी में आलमी जंगों के मुतासरीन को आलमी सतह पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना था। पाकिस्तान में हजारों खानदान गैर एलानिया जंग के मुतासरीन हैं, लेकिन इन खानदानों को इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने वाला कोई और नहीं बल्कि आलमी अदालत इंसाफ है, जिसने हजारों अफराद के कातिल भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण के खिलाफ पाकिस्तानी अदालत के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। यौम इंसाफ मनाने का मकसद तभी पूरा होगा जब आलमी अदालत इंसाफ जैसे इदारे मखसूस लॉबीज के कंट्रोल से निकलकर आज़ादाना फैसले करेंगे। लाहौर में 17 घंटे की बारिश के बाद आज सूरज चमक रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिशें होंगी। अलबत्ता चंद मकामात पर बदस्तूर मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में भी आज मतला अबरालूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान है। सुबह के वक्त दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है। और PDMA ने बारिशों के हालिया सिलसिले के दौरान शहरियों से एहतियात बरतने की भी अपील की है। मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी, कहीं कहीं धूप भी चमकने लगी। बादल बरसने का तसलसल जुमेरात तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सिर्फ लाहौर में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई नशेबी इलाकों में आज भी पानी खड़ा है। हाफिजाबाद 77, कसूर 60, मंडी बहाउद्दीन 24, अटक 22, टोबा टेक सिंह, चकवाल 16, गुजरावाला 11, इस्लामाबाद 9, सियालकोट में 8 मिलीमीटर बारिश हुई। पेशावर, मालाकंड, हजारा डिवीजन समेत खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी बारिश खूब बरसी। सावन आज भी बरसेगा। कोयटा में मौसम गर्म रहा, पारा 41 डिग्री को छू गया। जो पारखान समेत आज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़िश्ता कई रोज से मानसून की बारिशों के बायस गर्मी की शिद्दत और हब्स में कमी हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान है। जुड़वा शहरों के मौसम की मजीद सूरत हाल बताएंगी नुमाइंदा न्यूज़ आयशा श्वेर। जी बिल्कुल, आज फिर से जो है बादलों ने इस्लामाबाद का घेराव किया हुआ है। मौसम काफ़ी खुशगवार है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। जबकि अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि यही दर्जा हरारत दिन के वक्त 31 डिग्री तक जाने के इम्कानात है। अगर महकमा मौसमियात की बात करते चले तो महकमा मौसमियात का कहना है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाकों में आज फिर से जो है गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बारिश के बाद मौसम तो खासा खुशगवार हो जाता है, लेकिन गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि हब्स में खासी शिद्दत जो थी वो महसूस की जाती थी। इसके साथ गर्मी की लहर भी बरकरार रही। आज सुबह सवेरे ही बादलों ने तो घेराव किया, इसके साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो मौसम को तो जो हसीन मौसम है इसने इस्लामाबाद के नज़ारों को और भी चार चांद लगा दिए। जी। और बलूचिस्तान के जोब डिवीजन में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सूबे के दीगर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता रोज नौकंडी और दलबदीन में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। नुमाइंदा न्यूज़ आसिफ बलोच हमें मजीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के अक्सर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के यूब डिवीजन में महकमे मौसमियात का कहना है कि गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि सूबे के जो अक्सर इलाके हैं वहाँ पर मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। खुसूसन इन दिनों जो है बलूचिस्तान के ज़िले चागी में शदीद गर्मी पड़ रही है। वहाँ पर नौकुंडी, दालबंदीन में पारा 46 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा है। और इसके अलावा कोयटा शहर और गिरदनवा में भी शदीद गर्मी की लहर जारी है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड
सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है और कम से कम कोयटा शहर का दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 20% है। कोयटा और गर्दनवा में गर्दालूद हवाएं चलने के बावजूद गर्मी की शिद्दत बरकरार है और दर्जा हरारत कम नहीं हुआ है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कोयटा, चागी, दालबंदीन और बलूचिस्तान के जो मशरकी इलाके अवाम पर जो है गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार रहेगी, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जी, जबकि शहर कायद में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी तौर पर अबरारूद रहेगा, बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौसम की मजीद सूरत हाल नुमाइंदा न्यूज़ मुन्ना सिद्दीकी से। जी, शहर का मौसम आज भी जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत शहर का 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% है। जुनूब मगरिब से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 15 नॉटिकल माइल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये हवाएं 15 से 20 नॉटिकल माइल तक जा सकती हैं। इसके अलावा शहर का मौसम जो है अबर आलूद है। बादल और सूरज की आंख मिचौली का सिलसिला जारी है, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि सुबह और शाम के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान है। जी, लाहौर में गुज़श्ता रोज की मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ कुर्रतुल ऐन ज़िया अपनी इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के दफ्तर में वो इस वक्त मौजूद हैं। जी कुर्रतुल ऐन ज़िया, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं महकमा मौसमियात के दफ्तर में मौजूद हूँ। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे हमरा हैं। जी बताइएगा। जी, ये जो बारिश का सिलसिला है ये ख़त्म नहीं हुआ, ये अभी इसका इम्पैक्ट जारी रहेगा। अगरचे इसकी इंटेंसिटी में थोड़ी कमी आ रही है, लेकिन ये जो बारिशों का सिलसिला है कोई ऐसा इसमें सिग्निफिकेंट ब्रेक नहीं है अप टू 26 अगस्त तक। तो ये जो नेक्स्ट जो वेदर सिस्टम है वो 22 से दोबारा एक एक्टिव सिस्टम हमारे ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री को इम्पैक्ट देगा, जिसका मेन फोकस हमारे जो सियालकोट, नारोवाल, जेलम, रावलपिंडी इन एरियाज में होगा। लेकिन बहरहाल बारिश लाहौर में भी होगी और मौसम कंटिन्यूसली अच्छा रहेगा। काफ़ी अच्छा जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में। जी, और आगे बढ़ेंगे। मौसम गर्मा के बेहतरीन फलों में से एक नाशपाती भी है। ग़िज़ाइयत से भरपूर फल जायके में भी मुनफरिद पहचान रखता है। जनूबी पंजाब के बागात में इस वक्त नाशपाती तैयार हो चुकी है। मुल्तान से अदनान याकूब रिपोर्ट करेंगे। सेब जैसा जायका और अमरूद की मुशाबहत, ये फल है नाशपाती, जिसका रंग शुरू में हरा और मुकम्मल पक जाने के बाद हल्का पीला हो जाता है। जनूबी पंजाब के बागात में नाशपाती पककर तैयार हो गई। मुनफरिद जायके की वजह से नाशपाती शौक से खाई जाती है। ये गर्मी को बेहद मकबूल तोहफा है हमारे पास ये नाशपाती का, तो हम एक बहुत अच्छा एक तरीके से पकाते हैं। बेशुमार ग़िज़ाइयत से भरपूर नाशपाती का सीजन जुलाई से वस्त सितंबर तक रहता है। आंतों की सोजिश खत्म करने में नाशपाती इंतहाई अहमियत की हामिल है। जायके में लाजवाब, गर्मियों का बेहतरीन फल नाशपाती जनूबी पंजाब समेत पाकिस्तान भर में बेहद पसंद किया जाता है। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ अदनान याकूब, न्यूज़ मुल्तान। और आपको बताएं कि चांद जमीन के साए से निकल आया। 5 घंटे 34 मिनट के बाद साल का दूसरा चांद ग्रहण इख्तिताम पजीर हो गया। ग्रहण का नजारा पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में किया गया। एशिया, जनूबी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी चांद ग्रहण लगा रहा। साल 2019 का दूसरा चांद ग्रहण 5 घंटे 34 मिनट बाद जमीन के साए से चांद निकल आया। गुज़िश्ता रात 11:44 पर जमीन सूरज और चांद के दरमियान आई तो चांद पर तारीकी छाना शुरू हो गई। 2:32 पर चांद मुकम्मल तौर पर ग्रहण की जद में आ गया। पाकिस्तान के तूल अर्ज में चांद ग्रहण का नजारा किया गया। सुबह 5:18 पर जमीन का साया हट गया और चांद एक बार फिर शफाफ सामने आ गया। एशियाई खित्ते, जनूबी अमेरिका समेत अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी चांद ग्रहण का नजारा देखने में आया।
बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिससे पहले अपडेट्स। जुलाई को पीराबाद से अगवा होने वाला बच्चा हुज़ैफा बाजियाब करवा लिया गया है। पीराबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अगवा मुलविस मुलजिम खालिद खान वल जावेद खान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के बयान के मुताबिक वो बच्चे की वालिदा से शादी करना चाहता था। इनकार पर इंतकामन बच्चे को अगवा किया गया। मजीद भी आपको डिटेल्स देंगे। इस हवाले से कराची में 13 जुलाई को पीराबाद से अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब करा लिया गया। पुलिस ने अगवा में मुलविस मुलजिम खालिद खान को गिरफ्तार कर लिया है। 13 जुलाई को पीराबाद से अगवा होने वाला ये बच्चा बाजियाब किया गया है। कराची में ये वारदात रुनुमा हुई थी 13 जुलाई को, जहां से पीराबाद से ये बच्चा अगवा हुआ था। अहम खबर आपको दे रहे हैं एक दफा फिर। आपको यहाँ पर इस खबर के बारे में यहाँ पर बताते चलें कि कराची में 13 जुलाई को पीराबाद से अगवा होने वाला बच्चा हुज़ैफा बाजियाब करवा लिया गया है। मजीद इस हवाले से हमें बता रहे हैं नुमाइंदा नियो रजब अली। जी रजब अली। जी, पुलिस ने करते हुए 8 रोज के बच्चे को बाजियाब करवाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जो कबल जो है बच्चे को अगवा किया गया था। मुलजिम की ख्वाहिश थी कि जो बच्चा है उसकी वालिदा से शादी करना चाहता था, जिसकी बिना पर माँ की जानिब से इनकार करने पर इंतकामन मुलजिम ने बच्चे को अगवा किया था। ताहम पुलिस ने तकनीकी महारत इस्तेमाल करते हुए जो है वो कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ मुकामात पर छापामार कार्रवाई की और अब ये भी हासिल हुई है कि मुलजिम को गिरफ्तार करके बच्चे को बाजियाब करवाकर माँ के हवाले कर दिया गया और बाकायदा तौर पर जो है वो कानून के मुताबिक मज़ीद कार्रवाई और तफ्तीश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया रजब अली हमें तफसीलात से आगाह करने का। और चिन्योट में माइंस एंड मिनरल्स स्कैंडल केस में साबिक वज़ीर जंगलात सिप्तैन खान समेत 4 मुल्जिमान के केस की समाअत आज होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुल्जिम सिप्तैन खान समेत दीगर मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड के बाद पेश किया जाएगा। मुल्जिमान में साबिक सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट मुल्जिम इम्तियाज अहमद चीमा, साबिक जनरल मैनेजर मुल्जिम मोहम्मद असलम शामिल हैं। इसके अलावा चीफ इंस्पेक्टर माइंस पंजाब मुल्जिम अब्दुल सत्तार शामिल हैं। मुल्जिमान ने मिली भगत से अरबों रुपए मालियत के चिन्योट आयरन और की कानकनी का ठेका मुबैना मनपसंद मामूली नौयत की कंपनी को नवाज दिया। नैब ने प्रोसिक्यूटर साबिक सूबाई वजीर बराए माइंस एंड मिनरल्स मोहम्मद सप्तान खान के 500 मैट्रिक टन आयरन ओर में गैर कानूनी ठेका जात का मामला है। एहतसाब अदालत के एडमिन जज चौधरी अमीर मोहम्मद खान केस की समाअत करेंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दौरा कराची। जस्टिस आसिफ सईद खोसा जुमेरात को कराची पहुंचेंगे। जुमे को सीपीओ ऑफिस का दौरा करेंगे और पुलिस इस्लाहत कमेटी के इजलास की सदारत भी करेंगे। चीफ जस्टिस सिंध पुलिस की कारकर्दगी और रिफॉर्म्स का जायजा भी लेंगे। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में आम इंतखाबात 2018 में बिलावल भुट्टो की रैली पर हमले का केस जमानत पर रिहा मुल्जिमान अदालत में पेश हो गए। मुल्जिमान में PS 107 से मुत्तहिदा उम्मीदवार रफीक हंगोरा, कबीर, नवीद अहमद, काशान, इस्माइल और दीगर शामिल है। मुल्जिमान के खिलाफ बलवा, फसाद, कार्य सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुल्जिमान पर बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम के दौरान पथराव, हंगामा आराई का इल्जाम भी है। मज़ीद भी आपको डिटेल्स देंगे। इस हवाले से जमानत पर रिहा मुल्जिमान अदालत में पेश कर दिए गए। और सिंध असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने सूबे में बिगड़ते हुए तालीमी मयार पर तशवीश का इजहार कर दिया है। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने असातिज़ा की 2 नंबरियों का एतराफ़ करते हुए कहा है कि अरकान असम्बली साथ दें तो असातिज़ा का टेस्ट लेने को तैयार हैं। ऐवान ने सूबे में बच्चियों के इख्वा से मुताल्लिक़ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर पास कर ली है। तफसीलात खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। सिंध असम्बली का इजलास दूसरे रोज भी महकमा तालीम के सवालों पर गर्मा गर्म बहस। हुकूमती अरकान फट पड़े। मलिक असद सिकंदर का हल्के में 60 स्कूल बंद होने का शिकवा। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने अरकान के तेजो तंद सवालों के जवाब दिए। असातिज़ा की 2 नंबरियों का एतराफ़ भी किया। कहा आने वाले महीनों में बेहतर और खराब कारकर्दगी के हामिल असातिज़ा की रिपोर्ट जारी की जाएगी। मगर एक बात को मैं यहाँ पे कबूल करता हूँ कि जो जिन टीचर्स की अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट बेस्ड होती है, डिस्ट्रिक्ट में भी विद इन यूनियन बेस्ड होती है। पहले हमारी क्राइटेरिया ये होती है कि वो यूनियन बेस्ड होंगे और दन तल का मेरिट पे होते हैं। वो आइडियली वहां से ट्रांसफर नहीं होने चाहिए अनलेस के जो पॉलिसी में अप्रूवल है कि वेडलॉक है। इन केस के वहां पे अगर एनओसी या नीड बेस्ड ट्रांसफर होती है, वरना ये होता है कि ज्यादातर हमारे सिंध में ये हुआ है प्रोविंस में कि जो देहात के स्कूल इसलिए बंद है
कि टीचर्स वहां से ट्रांसफर करवा के वो शहरों में आ गए हैं। सूबे में बच्चियों के अगवा और जबरी मजहब तब्दीली से मुतालिक करारदाद ऐवान ने मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के रुकन खुर्रम शेर जमान ने अपनी तहरीक इस्तेकाक मुकेश कुमार की यकीन दहानी पर वापस ले ली। असेंबली गैलरी और बाहर साफी कॉलोनी की जमीन पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। हुकूमत और अपोजिशन अराकीन ने इजहार यकजहती करते हुए मसला हल करने की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन जुल्फकार के साथ खुर्शीद रहमानी, नियो न्यूज कराची। पाकिस्तान रेलवेज ट्रेनों की आमदोरफ्त वक्त पर न ला सकी। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाले जाने वाली तमाम ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार है। कराक्रम एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस की आमद में 8 घंटे 50 मिनट ताखीर। कराची से लाहौर आने वाली लामा इकबाल एक्सप्रेस 6 घंटे 30 मिनट लेट। और इस तरह ये ट्रेनें ताखीर से रवाना होंगी। मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटके रहेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुल मन्नान गीलानी बताएंगे अभी मजीद क्या तफसीलात आ रही हैं ट्रेनों के औकात कार के हवाले से। जी आगाह कीजिएगा। रेलवे इंतजामिया जो है वो ट्रेनों का शेड्यूल बहाल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। हर हफ्तावार और रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग्स भी की जा रही है। हालिया दिनों में चेयरमैन रेलवे की जानिब से तमाम डिवीजन जो है पाकिस्तान की, उनके टीएस जो है वो वीडियो लिंक पर लेकर भी इस मसले पर बातचीत की गई और मनसूबाबंदी की गई। मगर देखने में आ रहा है कि जो ट्रेनों की ताखीर है वो काबू में नहीं आ रही है। आज की अगर बात करें से आने वाली तमाम ट्रेनें ताखीर का शिकार है। तमाम ट्रेनें ही ताखीर का शिकार है। अब्दुल मन्नान, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। और पैदाइश के वक्त इंतहाई कमजोर पैदा होने वाले बच्चों को वेंटिलेटर्स पर तो हर जगह रखा जाता है, लेकिन कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में पैदाइश के बाद वेंटिलेटर्स पर रखे जाने वाले बच्चों की शरह कई गुना ज्यादा है। एक रिसर्च के मुताबिक उनकी शरह 45% से भी ज्यादा है। इसकी वजूहत क्या है और इनमें से बात का जायजा लिया कोयटा से दानिश मुराद ने अपनी इस रिपोर्ट में। चिल्ड्रन अस्पताल कोयटा के इंतहाई निगहदाश्त के 16 वेंटिलेटर्स में से कोई भी खाली नहीं रहता। वजह बच्चों की एक बड़ी तादाद का पैदाइश के वक्त इंतहाई कमजोर हालत में पैदा होना है। डॉक्टर जावेद बलोच का कहना है कि माएँ कम खुराकी का शिकार होती हैं, जिसके नतीजे में बच्चे कमजोर पैदा होते हैं। माँ की ग़िज़ाई खुराक कम हो जाता है तो उस वजह से बच्चा कमज़ोर हो जाता है। बच्चों के बारे में रिसर्च करने वाले समाजी कारकुन बहराम बलोच भी इससे इत्तेफाक करते हैं। बलूचिस्तान की जितनी आबादी है उनके आधे से ज़्यादा पेशेंट किसी हवाले से दिए जाते हैं, तो उनका एवरेज आप निकाले जो है ना 35 से 45 के दरमियान होगा, जो कि मेरे ख्याल में फिर भी कम होगा। बहराम बलोच के मुताबिक माजी के मुकाबले में कमजोर पैदा होने वाले बच्चों की शरह में इजाफा होता जा रहा है। कमजोर पैदा होने की वजह से बलूचिस्तान में बच्चों की शरह अमवात भी दीगर सूबों के मुकाबले में ज्यादा है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ दानिश मुराद, नियो, कोयटा। लसबेला में हाब बिंदर के करीब कराची से तुर्बत जाने वाले मुसाफिर कोच और वैन में तसादुम हुआ, जिसके बाद दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी। गाड़ी में सवार 6 अफराद झुलस कर जाबहक हो गए। कोच में सवार मुसाफिरों ने भागकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड के अमले ने 1 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। झुलस कर जाबहक होने वालों की लाशें बिंदर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हादसे के बाद हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एएसएफ की कार्रवाई बैरून मुल्क मंशा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। कतर जाने वाले मुसाफिर की इजी चेयर से 1.5 किलोग्राम से ज्यादा चर्स बरामद हुई है। एएसएफ के मुताबिक मुलजिम ने चर्स इजी चेयर के हेडरेस्ट वाले हिस्से में टेप लपेट कर छुपा रखी थी। मुलजिम सनी का ताल्लुक लाहौर से है। गैर मुल्की एयरलाइन से कतर जाना चाहता था। मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश के लिए ANF के हवाले कर दिया गया है। आगे बढ़े, मजीद खबरें शामिल करें। खुद को कानून से बालतर समझने वाले नए पाकिस्तान में पहली बार कानून के यकसा इत्तलाक से बेबस हो गए। इन्हें अवाम का कोई एहसास नहीं, सिर्फ अपने इक़्तिदार की महरूमी का दर्द है। मामले खुसूसी फिरदौस आकिश अवान का ट्वीट। वर्कर्स कन्वेंशन की नाकामी के बाद बेगम सफ्तर अवान GT रोड पर ट्रैफिक का सहारा लेना चाहती हैं। मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले जिद्दोजहद नहीं, सिर्फ जालसाजी कर सकते हैं।
हुकूमत का कहना है कि बेनामी जायदादों के सबूत पेश न किए गए तो तमाम प्रॉपर्टीज बेचकर रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर अली जैदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने आसिफ जरदारी की बेनामी जायदादों की तफसीलात पेश कर दी। दावा किया आसिफ जरदारी की बेनामी कंपनियों की तादाद 32 है। हसन हुसैन, अली इमरान और सुलेमान शहबाज समेत तमाम मफरूर हैं और अगर वो वापस ना आए तो जायदादें जब्त हो सकती हैं। मुस्लिम लीग नवाज के सदर और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार डेली मेल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर के खिलाफ बरतानिया में मुकदमे की तैयारियां कर ली। शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए लंदन के वकला से मुशावरत भी की। वकला ने बरतानवी अखबार में झूठी खबर की इशाअत के खिलाफ चाराजोई से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक मुकदमा दायर करने के लिए इब्तदाई नुकात तय कर लिए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 55 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 33,000 की सतह उबूर कर गया, जबकि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 47 पैसे की कमी से 159 रुपए 58 पैसे का हो गया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, एक दफा फिर आपको यहाँ पर बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 55 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और 100 इंडेक्स 33,000 की सतह को भी उबूर कर गया, जबकि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर भी 47 पैसे की कमी से 159 रुपए 58 पैसे का हो गया। राजा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मज़ीद बताएंगे। राजा कामरान, मार्केट की सूरत हाल से आगाह करें। ये देखिए, गुज़िश्ता रोज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ था जिसमें मार्केट की तवक्को के मुताबिक जो है 1% बुनियादी शरह सूद में इजाफा कर दिया गया था। बुनियादी शरह सूद 13.25% थी। इस मार्केट की तवक्को के मुताबिक बुनियादी शरह सूद से बढ़ने से जो है आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कदर बेहतरी नजर आ रही है। मार्केट रेंज बाउंड है और अभी 30 पॉइंट से इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ फॉरेक्स मार्केट में हम देख रहे हैं कि जो रुपया है वो कदर अपनी कदर बेहतर कर रहा है। ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान की मशीद के हवाले से बेहतर है और हमारी यही कहना है कि आने वाले दिनों में स्टेबिलिटी आएगी। आने वाले दिनों में स्टेबिलिटी आएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का, राजा कामरान। शाहिद गफ्फार, मियो न्यूज़, कराची। अमरीकी ईमान नुमाइंदगान ने डोनाल्ड ट्रंप का ख्वातीन अरकान कांग्रेस के खिलाफ बयान नस्ल परस्ताना करार दे दिया। अमरीकी सदर के बयान के खिलाफ मुसम्मती करारदाद भी मंजूर कर ली गई। स्पीकर नैंसी पेलोसी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज शर्मनाक और काबिल नफरत है। ट्रंप के खिलाफ मुसम्मती करारदाद के हक में 4 रिपब्लिकन अरकान ने वोट भी दिए। Comments from the White House are disgraceful and disgusting, and the comments are racist. अमरीकी अवानी नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी डोनाल्ड ट्रंप पर बरस पड़ी। खवातीन अरकान कांग्रेस के खिलाफ बयान नस्ल परस्ताना करार दे दिया, which reflect a fundamental disrespect for the beautiful diversity of America. नैंसी पेलोसी का कहना है डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज शर्मनाक और काबिल नफरत है। ऐवान में ट्रंप के बयान के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद भी मंजूर कर ली गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे ट्वीट नस्ल परस्ताना नहीं थे, मेरे जिस्म में तो नस्ल परस्ताना हड्डी ही मौजूद नहीं। रिपब्लिकन को डेमोक्रेट के सामने कमजोर नहीं होना चाहिए। You can leave right now. सऊदी अरब की शाह अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने बिजली बनाने के साथ साथ पानी साफ करने वाला सोलर पैनल तैयार कर लिया। सोलर पैनल नमकीन समुद्री पानी को बुखारात में तब्दील करता है। ये बुखारात बारीक नालियों से होते हुए नीचे पहुंचते हैं। इसी दौरान मजीद सर्द होकर पानी में बदल जाते हैं जो बिल्कुल साफ होता है। सोलर पैनल 1 घंटे में 1.6 किलोग्राम पानी साफ कर सकता है। पैनल सिस्टम की लागत $10,000 है।